Hello everyone. I hope you all are enjoying your days in your home. So this is Jason with you, and today class 8 we are going to start another lesson in history. So the name of the lesson is Ruling the Countryside, and it's lesson number 3 from our history book. So the first point comes over here is how did the East India Company use the authority of the Diwani? So here the first point that how East India Company benefited the Diwans or Diwanis in our country. So the Mughal Emperor in 1765 appointed this British East India Company as the Diwan of the provinces of Bengal. यानी दीवान इनको स्थापित कर दिया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कौन से साल में 1765 में. The Diwani allowed the companies to exploit the vast revenue sources of Bengal. This solved a major problem the company had earlier faced. Although its trade had expanded, it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. तो जो दीवान है उन लोगों को क्या था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए वो इंडिया में आए थे. उनको बहुत ज़्यादा पैसा तो बंगाल की साइड से मिला, लेकिन उनके जो बिज़नेस जो थे उनको एक्सपेंड करना था, इसीलिए वो क्या करते थे अपना सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से क्या मंगाते थे, सोना और चांदी मंगा के इंडिया को पे करते थे और सामान लेते थे. द ओवरफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशंस ऑफ दिवानी. नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस. लेकिन जो गोल्ड जो बहुत ज़्यादा आने लगा उनको वहाँ पे रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा देखो फर्स्ट पॉइंट में द दीवानी अलाउड द कंपनी टू एक्सप्लॉइट, यानी और ज़्यादा उनको रेवेन्यू के बारे में या फिर भारत में जो खजाना है उनके बारे में बताने लगे और जो इनकम सोर्सेज हैं उनके बारे में बताने लगे. और जो कंपनी है वो उनको कहीं और से मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इंडिया से ही उनको रेवेन्यू मिल गया था. These revenues they used to purchase cotton. ये रेवेन्यू क्या काम में लिया उन्होंने? To purchase cotton and silk textiles in India. Maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. Next is what new systems did the East India Company devise to raise revenues. So और क्या क्या ऐसा किया जिससे कंपनी का जो था वो रेवेन्यू यानी इनकम जो थी वो बढ़ने लगी. The permanent settlement system. First point is the permanent settlement system. The permanent settlement is also known as the permanent settlement of Bengal. Was an agreement between the East India Company and Bengali landlords to fix revenues to be raised from land that had far-reaching consequences for both agricultural methods and productivity in the entire British Empire and the political realities of the Indian countryside. So basically the permanent settlement system has to do, the company is done with बंगाल के साथ उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किया कि जो भी रेवेन्यूज़ वगैरह जो हैं वो इतना अमाउंट में हमको परमानेंट रेवेन्यू आता रहे. इस तरह से ब्रिटिशर्स ने बंगालीज को बोला. द सेकेंड इज महालवारी सिस्टम. द महालवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हॉल्ट मैकेंजी. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन द ईयर ऑफ 1822. The other two systems were the permanent settlement in Bengal in 1793 and the Royatwari system in 1820. It covered the states of Punjab, Awadh and Agra, parts of Orissa and Madhya Pradesh. During the 1800s, the British established control over administrative machinery of India. So after this settlement, they took control. In 1800, they took control over the administrative ministry of machinery of India. Then the system of land revenue acted as a chief source of income of the British. Land was one of the most important source of income for the Britishers. So basically after getting everything from Indians, जो ज़मीनें थी वो भी भारत की जो ज़मीनें थी वो भी हड़पने लगे और वो ब्रिटिशर्स के लिए एक रेवेन्यू का सिस्टम बन गया. Thus they used land to control the entire revenue system, strengthening their economic conditions in India. और अपने लैंड को फिर बेच के राजा महाराजाओं को बेच के अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ब्रिटिशर्स ने अच्छी करी. The next point is the Munro system. Munro system was also known as Rotwari system. It was tried before by Captain Alexander Reid on a small scale and extended by Thomas Munro. It had a majority in South India. Connection was directly made with the cultivators who had tilled the land for generation. जिन्होंने ज़मीन को सालों साल बचा के रखी थी उनसे ये लोग लैंड वगैरह भी खरीदने लगे. Munro thought British
should act as a paternal father figure protecting the rights under charge instead of zamindars. Riots were in charge of their land. The field of riots were carefully surveyed before the revenue assessments made. तो जो भी जो ज़मींदार थे उनके अंडर में काम करने वाले जो भी लोग थे उनको ज़मीन देने लगे, उनसे ज़मीन लेने लगे, अपनी इनकम बढ़ाई और इनके बीच में सौदा भी करने लगा कि अगर आपकी ज़मीन इनके पास है तो हम आपको दिला के देंगे, लेकिन उसका बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स अपना काम करते थे. So how did the Indian cultivators have to produce crop for Europe? So the first point is cultivation of Indian indigo plant. So indigo जो plant है उसका पहले बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और ब्रिटिशर्स वगैरह उस चीज़ का ट्रेड करते थे. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. So this Indian indigo plant from Bengal, it's dominated in the market. डोमिनेट करने का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इस इंडिगो प्लांट की बिक्री हुई मार्केट में. एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन. तो ये कल अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, मार्केट में इंडिगो प्रोडक्शन के ऊपर पैसे लगाने लगे. नेक्स्ट इज निज कल्टिवेशन. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in land that he directly controlled. He either bought the land or rented it from the other zamindar and produced indigo by directly employing hired laborers. तो ये निज कल्टिवेशन क्या करते थे, ये ज़मीन जो पैसे जिनके पास थे वो जो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, या तो ज़मीन खरीद लेते थे, नहीं तो जो ज़मींदार वगैरह हैं उनसे ज़मीनें तो थी, लैंड जो थे वो उधार पे ले लेते थे और वहाँ पे इंडिगो कल्टिवेशन करने के लिए लोगों को दे देते, या तो फिर इंडिगो के पेड़ उगा देते थे या फिर जो पौधे हैं वो उगा देते. और जो हायर लेबर जो थे वो क्या करते थे, ये देखिए हायर्ड लेबर जो है, लेबर्स को क्या करते थे वो हायर करते थे, यानी किराए पे लेते थे और सारा काम करवाते थे. द ब्लू रेबेलियन. इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo as the rebellion spelled riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted and the gomastas, agents of planters who came to collect rent, were beaten up. तो ये जो है 1859 में बंगाल के जो लोगों ने मना कर दिया कि हम ये इंडिगो का प्लांट नहीं उगाएंगे, और क्योंकि इनको पता चल गया था कि ये अंग्रेज़ जो है वो उनके ऊपर शासन करने के लिए आने वाले हैं, हमारे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं, तो इन्होंने मना कर दिया था. जो भी प्लांट्स वगैरह थे, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह थी, वहाँ पे तलवार लेके, स्पीयर्स यानी भाले वगैरह लेके पहुँच गए, उनकी मारा पीटी करी. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये सब मारा पीटी उनके लोगों के साथ करा, मतलब इंडियंस के साथ किया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था. ये सब मना किया. और जो उधर की जो वुमेन थी, जो लेडीज़ थी, उन्होंने किचन के जो भी सामान होते हैं, बर्तन हो या क्या बोलते हैं तवा हो, इन सब से लड़ाई करने के लिए वो लोग भी आ गए थे. और लोगों ने क्या किया, जो सोशली लोग बॉयकॉट करना चालू कर दिया. बॉयकॉट मतलब काम नहीं करेंगे, इस तरह से बोलना चालू कर दिया. नेक्स्ट इज हाउ डिड द इंडिगो कल्टिवेटर्स रिवॉल्ट एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस. कि इंडिगो कल्टिवेटर्स ने किस तरह से रिवॉल्ट किया, यानी उनको मना किया कि हम काम नहीं करेंगे, और इसका क्या परिणाम निकला. The peasants were compelled to plant indigo rather than for food crops. The peasants were provided loans called dadoon for indigo planting, which was at a very high interest rate. The loan made the people indebted and resulted in a rebellion. The leaders were Digambar and विश्वास. तो बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंसेज या फिर ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि जो इंडिगो प्लांट्स थे, अंग्रेजों ने बोला कि आप सिर्फ इंडिगो प्लांट से उगाओगे, लेकिन फार्मर्स या फिर जो उधर के जो लोग थे वो चाहते थे कि पहले हम हमारे खाने के लिए तो कुछ उगाएं, अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा. तो इंडिगो प्लांट्स उगाने के लिए बोला, और वो इंडिगो प्लांट्स वो जो लोग थे वो किस्तों पे उठाते थे और क्या बोलते हैं लोन ले लेके उठाते थे, लेकिन उनका जो था क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा लगता था. यानी अगर एक साल में अगर वो 2 रुपये कमा रहे हैं तो उनको एक साल में नहीं, मतलब हाँ, एक साल में 10 रुपये कमा रहे हैं तो हर महीने 1-1 रुपये करके उनको देना होता था. तो इस तरह से इन्होंने इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर दिया था और लोग इससे क्या बन गए, विद्रोह करने लगे और आवाज़ उठाने लगे. और इनके लीडर्स कौन से, इनके लीडर्स थे दिगंबर, इनके लीडर्स थे दिगंबर एंड विष्णु विश्वास. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर चैप्टर. इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे कंट्री के ऊपर रूल किया और हमारे एक एक चीज़ों को या फिर एक एक देश की चीज़ों पे कब्जा किया.
So that's all from our chapter. I hope you understand. This is the brief summary of the chapter. I will send you the question answers and the PDF in the next video. Thank you very much.